जय सच्चिदानंद। खास महात्माओं ने जणावવાનું હવે પછીની કીર્તન ભક્તિ કામરેજ ત્રિમંદિર ત્રિમંદિર તારીખ 25 અને 26 એટલે કે આવતા શનિ રવિ કીર્તન ભક્તિ ત્યાં રહેશે। 3 દિવસ પછી વાપી દિલીપભાઈ વાપીની ફેક્ટરીમાં ઘણા વર્ષોથી નવરાત્રી ચૈત્ર માસની નવરાત્રી અને આસો માસની નવરાત્રીમાં નવચંડી થાય છે। તે આ વખતે 25-26 કીર્તન ભક્તિ કામરેજ મંદિર પછી 29 માર્ચે નવચંડી વાપી દિલીપભાઈની ફેક્ટરીમાં ખાસ સુરત નવસારી વલસાડ કિલ્લાપાડી વાપી એ મહાત્માઓ ખાસ નવચંડીમાં લાભ લઈ શકશો। સવારે 9 થી સાંજે 5 વાગ્યા સુધી અને કીર્તન ભક્તિ 25-26 એ પછી કીર્તન ભક્તિ તારીખ 1 અને 2 એપ્રિલ ભાદરણ ભદ્રકાળી માતાના પ્રાંગણમાં જ્યાંથી આ 14 લોકના નાથ પ્રગટ થયા। કળિયુગમાં ભગવાન હોતા નથી અને હોય તો દરેકને ક્રમિક માર્ગ પસંદ છે। ઘેર બેઠા લિપ્ત માર્ગ અને મોક્ષ એવા જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાન ભાદરણ ભૂમિ ઉપરથી અવતર્યા। એ ભાદરણ ગામમાં કીર્તન ભક્તિ તારીખ 1 અને 2 એપ્રિલ એના મહાત્મા છે રશ્મિબેન જીતુભાઈ શાહ અને ભાદરણના આવેલા છે વિપુલભાઈ મફતભાઈ અને બીજા 9-10 મહાત્માઓ બધા આમંત્રણ આપે છે। 1-2 એપ્રિલ સૌથી પહેલા 25 અને 26 કીર્તન ભક્તિ કામરેજ મંદિરે સર્વે મહાત્માઓ તરફથી 29 તારીખે નવચંડી સુરત નવસારી વલસાડ કિલ્લાપાડી વાપીના મહાત્માઓ આ નવચંડીમાં આવી શકશે। એના પછી 1-2 કીર્તન ભક્તિ ભાદરણ આપણા પોતાના સનાતન સંસ્કાર આપણા કેન્દ્રમાં આપણા હોલમાં 3 તારીખે છોડીને 4 તારીખે મહાવીર જયંતિ તથા સિમંદર સ્વામી અરિહંત પરમાત્માનું કેવળ જ્ઞાન કલ્યાણક મહાવીર જયંતિ અને સિમંદર સ્વામી અરિહંત પરમાત્માના કેવળ જ્ઞાન કલ્યાણકની ઉજવણી કેલનપુરી મુકામે અડધા દિવસની સવારે 8 થી બપોરે 1 એના નિમંત્રક હસુમતીબા આપતપુત્ર ભરત આનંદજી મિનેશ આનંદજીના માતુશ્રી આપતપુત્ર ભરત આનંદજી મિનેશ આનંદજીના પિતાશ્રીના નિમિત્તે મહેતા સાહેબ જે આપતપુત્રોના ગાર્ડિયન કહેવાયા દાદા ભગવાને મૂકેલા એમના માતુશ્રી અત્યારે સૌથી યંગ છોકરાઓ કાચા પડે પણ માં કાચી ના પડે ખરેખર ધન્ય છે। 94 વર્ષે અહીંયા કેવા અને કીર્તન ભક્તિમાં આવ્યા છે। હસુબાવ ક્યાં છો? એમને સંભળાતું નહીં હોય। ઓ 94 વર્ષની ઉંમર અને એમને રામેશ્વર આવવું તો આપતપુત્રોને કહ્યું કે તમારે ના આવવું હોય તો ના આવશો હું તો જવાની અને મને તો બધા સાચવી જ લેશે। હા અને મહાત્માઓની જોડે ટ્રેનમાં આવ્યા અને કહ્યું કે જેમાં બધા હોય એમાં આપણે જશું। એ હસુમતીબા તરફથી 4 એપ્રિલ મહાવીર જયંતિ તથા સિમંદર સ્વામી અરિહંત પરમાત્માનો કેવળ જ્ઞાન કલ્યાણક મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં સિમંદર સ્વામી ભગવાન સાથે બીજા 19 તીર્થંકર 20 વિહરમાન તીર્થંકર સાહેબોનો કેવળ જ્ઞાન એક જ દિવસે હોય। ચ્યવન એક જ દિવસે જન્મ કલ્યાણક એક જ દિવસે દીક્ષા કલ્યાણક એક જ દિવસે કેવળ જ્ઞાન
કલ્યાણક એક જ દિવસે અને નિર્વાણ પણ 20 તીર્થંકર સાહેબો એક જ દિવસે પામે એવું મહાવિદેહ ક્ષેત્ર જ્યાં નિરંતર ચોથો આરો છે, સતયુગ કહેવાય ચોથો આરો. દાદા ભગવાન કહેતા અમારી પાસેથી 999.99 અહીંયા તૈયાર થઈ જજો, પણ અહીંયાથી મોક્ષે નહીં જવાય. વાયા મહાવિદેહ એમાં પણ સિમંદર સ્વામી પરમાત્માને આપણા આ ભરત ક્ષેત્ર જોડે ઋણાનુબંધ છે. એમને ઋણાનુબંધ છે, પણ આપણે દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ સિમંદર સ્વામી પરમાત્મા જોડે ઋણાનુબંધ એવો બાંધવાનો છે. દાદા ભગવાન કહેતા કે અહીંયા રહીને અમારી 5 આજ્ઞા અને અમે બતાવેલી વિધિ અને પ્રતિક્રમણથી એવા તૈયાર થઈ જાઓ કે મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં સિમંદર સ્વામીની નજીકમાં જન્મ થાય અને રોજે રોજ દર્શન થઈ શકે. એવું ના બને કે સિમંદર સ્વામી ભગવાન ગુજરાત કે રાજસ્થાનમાં હોય અને આપણો જન્મ કલકત્તામાં થાય તો આપણે ક્યારે જવાય, ક્યારે દર્શન કરીએ? માંડ વર્ષમાં 2 વાર દર્શન થાય. લગન હોય તો દર મહિને જઈએ, પણ ભગવાનના દર્શન તો માપી માપીને કરીએ, કારણ કે આપણે પંચમ આરાના જીવો. એક મૂર્તિ મૂકવી હોય ને તો પણ દાન લખાવો અને મૂર્તિ મૂકો. ત્યારે જય સચ્ચિદાનંદ સંઘ દાદા ભગવાનનો સૌથી પ્રથમ દાદા ભગવાનની હાજરીમાં ત્રિમંદિર અને ત્રિમંત્ર ઋષભદેવ ભગવાન પહેલા તીર્થંકરે આપેલો. કાળ ક્રમે મંદિરના ભાગલા થયા અને કળિયુગમાં મંત્રના પણ ભાગલા થયા. કોઈ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય જ બોલે છે, કોઈ ઓમ નમઃ શિવાય બોલે છે અને કોઈ નવકાર મંત્ર બોલે છે. નવકાર મંત્રમાં પણ અમુક વર્ગ એસો પંચ નમોકારો સવ્વ પાવ પણાસણો બોલતા નથી. નમો લોય સવ્વ સૌણમ સુધી બોલે. કળિયુગમાં દરેક વસ્તુના ભાગલા પાડવા, ભેદ પાડવા, ત્યાં વિતરાગ માર્ગ નહીં, ધર્મ પણ રહ્યો નથી. એવા કળિયુગમાં દાદા ભગવાને ઋષભદેવ ભગવાનની આપેલા ત્રિમંત્ર, એ આ કાળમાં ત્રિમંત્ર ભેગા કરીને સાથે બોલતા કર્યા. ધન્ય છે આ ભાદરણના પટેલને કે ક્યાં નથી ધર્મ, નથી પક્ષ, નથી સંપ્રદાય, નથી તિથિની વડમવાડ અને નથી કોઈ નિયમ. ત્યાં દાદા ભગવાને 3 મંત્ર ભેગા કર્યા અને કહ્યું, કળિયુગમાં સંસારમાં એવા હિસાબ લાવ્યા છો કે છેલ્લા શ્વાસ સુધી તમને હિસાબ છોડે નહીં અને દરેકને પૈસાથી પૂજાવું છે. એ ટાઈમમાં કંઈક અડચણો, કંઈક મુશ્કેલી, કંઈક વિઘ્નો, અંદર પણ વિઘ્નો લાવ્યા છીએ. અંદરના વિઘ્નો તીર્થંકર ભગવાન અને આવા દાદા ભગવાન જ્ઞાની પુરુષની ઓળખાણ થવા ના દે, અને બહારના વિઘ્નો સંસારમાં મહેનત કરાવીને તેલ કાઢી નાખે, પણ જમવાનો પણ ટાઈમ નથી હોતો. એવા કાળમાં દાદા ભગવાને ત્રિમંત્ર, ત્રિમંદિર, નિષ્પક્ષપાતી, એ મંદિરમાં નથી કોઈની તકતી કે આ ફલાણા ભાઈ તરફથી 55 લાખ રૂપિયાનું ડોનેશન, નથી કોઈ જગ્યાએ કોઈ પણ પ્રકારની વાવા. દાદા કહેતા દાન એવું આપો કે દાનની કમાણી તમારી જોડે આવે બીજા ભાવમાં.
જો અહીંયા તકતી મુકાવશો તો બધી પુણ્ય ખર્ચાઈ જશે. એવું કામરેજ મંદિર પર સિમંદર સ્વામી અર્યંત પરમાત્મા 12 ફૂટ અને 1 ઇંચ ની પ્રતિમા. અને દાદા કહેતા કે સિમંદર સ્વામી ભગવાનની પ્રતિમા મૂકશો ને આખા સુરતની सूरत बदलाई जैसे. आप सभी को मैं चाहता हूं कि मैं मानता हूं आप सभी को गुजराती समझ में आता होगा, नहीं तो मैं हिंदी में बात कर सकता हूं मगर तमिल में बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि तमिल लैंग्वेज तो आप मुझे गाली दे रहे हो या हमारी प्रशंसा करते हो वो भी समझ में नहीं आता है. हिंदी चाहो तो हिंदी, गुजराती चाहो तो गुजराती. फिर भी दादा भगवान ने कहा कि इस कलयुग में सबके भीतर शुद्धात्मा की पहचान करवाना, शुद्धात्मा का अनुभव करवाना वो शास्त्रों से नहीं हो पाएगा, त्याग तपस्या से नहीं हो पाएगा. यही बात राम भगवान ने रामेश्वर में एक एक पत्थर, पत्थर मतलब कौन, तो क्या हमारे खुद के मन वाणी काया जो हम लेकर बैठे हैं, मन वाणी और काया, इस पत्थर के ऊपर शुद्धात्मा प्रकट होना मतलब राम प्रकट होना. और साथ साथ दादा भगवान ने कहा जहां भी जाओ शुद्धात्मा के दर्शन करना और जैसे ही जिससे मिलते हो वो मिलने का खत्म हुआ और बिछड़ रहे हो, उससे अलग हो रहे हो, तुरंत प्रतिक्रमण करना. शुद्धात्मा आपने देख लिया, बातें की, व्यवहार किया, 1 घंटा साथ में बैठे, फिर बिछड़ने का टाइम आया कि चलो भाई हम चलते हैं, आप भी चलिए. तो दादा भगवान ने कहा और तीर्थंकर परमात्मा महावीर भगवान ने कहा जब मिलो तब भीतर के परमात्मा को नमस्कार करो और जब मिलने का खत्म हो जाए तो तुरंत प्रतिक्रमण कर लेना. कहीं ना कहीं इस आंखों से, कान से, वाणी से दोष हो जाते हैं, पता तक नहीं चलता है क्योंकि कलयुग में 1 सेकंड में कितने दोष होते हैं. तो हम 1 घंटा जिसके साथ बैठे तो हमने आंखों से कितने दोष किए होंगे. चलो कोई बात नहीं, दिखाई दे ऐसे दोषों का प्रतिक्रमण करके आप खुद को हल्कापन महसूस करोगे. इतने तब जाके पत्थर इतने बड़े समंदर में भी तैरने लगे. समंदर इतना बड़ा है फिर भी उस पर राम लिखा, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं मन वाणी शरीर से कोई भी क्रिया करने वाला हूं नहीं, क्योंकि मैं मन वाणी शरीर स्वरूप से नहीं हूं, मैं उससे भिन्न शुद्धात्मा हूं. उसी को कहा पत्थर पे राम लिखना. एक एक पत्थर तैरने लगे. क्यों तैरने लगे? जिन्होंने जितनी गलती की है और उसकी गलतियों का प्रतिक्रमण करे, अपने आप अपने मन वाणी काया संसार समंदर में, जैसे यहाँ पे रामेश्वर में समंदर है, वैसे तीर्थंकर भगवान और वितरागों की दृष्टि में ये संसार भी बहुत बड़ा समंदर है. इसमें तैरना ये तो कोई ज्ञानी पुरुष या तो तीर्थंकर परमात्मा वो ही सामर्थ्य रखते हैं संसार में तैरने की. हर एक आदमी पल पल संसार में डूब जाते हैं, या तो आंखों से डूबते हैं क्योंकि आंखों का दोष इस काल में बहुत बड़ा है. छोटी छोटी बात में आंखों से दोष हो जाते हैं. तो दादा भगवान ने कहा संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त कैसे रह पाओगे, तो आप खुद आप ही के भीतर रहे परमात्मा का दर्शन सभी के भीतर करते जाओगे, तब जाके आप संसार में रहते हुए भी
संसार से मुक्त कहलाओगे। ये 24 घंटे की 24 कलाक की कीर्तन भक्ति दादा भगवान की आज्ञा, खुद ही के भीतर रहे परमात्मा की भक्ति करना, खुद ही के भीतर रहे शुद्धात्मा की कीर्तन भक्ति, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान मतलब हमारे सबके भीतर बैठे परमात्मा। जो परमात्मा प्रकट हुए उसको फोटो, उसकी फोटो रखी है अंबालाल मुर्जीभाई पटेल। संपूर्ण परमात्मा प्रकट हुए, ऐसे ही परमात्मा हमारे भीतर है और उसी की कीर्तन भक्ति करते हैं। जब अपने खुद के भीतर है परमात्मा की कीर्तन भक्ति करना कैसे कंटाला है। आज मुझे कोई कह दे कि सुबह से लेकर शाम तक जितने पैसे गिन सको आप गिन लो, जितना गिनोगे वो आपके हो जाएंगे। आप सभी सुनते हैं गुजराती, हिंदी। भगवाने કહ્યું સવારથી લઈને સાંજ સુધીમાં જેટલા રૂપિયા ગણાય એ ગણો અને જેટલા ગણશો એ તમારા। खावा जाओ खरा। नैनमल जी खाने को जाएंगे। भगवान ने कह दिया सुबह से आपकी जितनी ताकत है ताकत लगा दो, जितने रुपये गिनोगे आप घर लेके जाना। क्या करोगे हम? हाथ से नहीं गिनेंगे, हम मारवाड़ी है। हाँ, कहां तक थूक लगाएंगे, टाइम जाएगा। फटाफट मशीन में डालो, जितना निकले मशीन लाने के वाले को भी हम 1% कमीशन दे देंगे। इतना भी भीतर से कंटाला नहीं आता है साहब। धंधा करना हो और धंधा दुगना हो तो खाने की कोई जरूरत नहीं है, शाम को खाना खा लेंगे। अभी धंधा दुगना हो रहा है तो बाद में चलो थोड़े 2 मिनट के लिए भगवान के दर्शन कर लेते। हाँ, 2 मिनट के लिए चलेगा, मगर आधा घंटा करोगे तो मेरा धंधा बिगड़ेगा साहब। क्योंकि भगवान इस काल में बहुत सस्ते हैं। जहां देखो भगवान मिल जाते हैं, मगर लक्ष्मी मिलने पर भी हमें जरा सा भी थकान नहीं लगता है। तो रुपये गिनने के बाद सारे रुपये आपके हो जाए, उसी तरह दादा भगवान ने कहा 24 घंटे की कीर्तन भक्ति में बैठो। जितना घंटा बैठोगे उतना आपके अंदर भगवान प्रकट हो जाएंगे। आपकी कमाई हो गई। क्योंकि मनुष्य जन्म में अगर कोई कमाई करने का है, मनुष्य जन्म में अगर कमाई करने का कोई रास्ता है तो भीतर के परमात्मा की कमाई करना है। बाकी सारी तो पुण्य का खेल है, अपनी तकदीर का खेल है, किस्मत का खेल है। मगर लोग किस्मत पर भी विश्वास नहीं करते। मैं मेहनत करता हूं, मेरी अक्ल से, मेरी खुद की टैलेंट से मैंने पैसे कमाए और गए, लॉस हुआ तो क्या कहेंगे? पार्टनर ने धोखा दिया, भगवान रूठे हैं, या तो सोमवार से रविवार तक सभी ग्रह मुझे नड़ते हैं, सारी अंगूठी पहन लोगे। मगर दादा भगवान ने कहा ये 24 घंटे की कीर्तन भक्ति में जितना घंटा बैठो आपका संसार फ्री में चलेगा। स्कीम निकाला कलयुग में, क्योंकि बिगर स्कीम तो कलयुग में धर्म भी नहीं करे। अगर मैं यहां कह दूं ना, एक काला धागा और लाल धागा लेकर मैं बैठ जाऊं और 2-4 जन को पहना दिया और देखो काम हो गया, तो देखो मदुराय के आप लोग तो पीछे बैठे होंगे चप्पल बूट के पास, मेरे पास लाइन लगी होगी काला धागा, लाल धागा, ग्रीन धागा लेने की। क्योंकि लोगों को संसार चाहिए। भगवान आप मोक्ष में ही रहो, आपका मोक्ष आपके पास, मगर हमारा संसार इतना अच्छा चलाओ कि हमें संसार चलाने में कभी भी थकान न लगे, थकान की महसूस तक ना हो। और घर के धर्म पत्नी कभी भी पैसा मांगे तो मैं तुरंत न दूं, अभी धंधा थोड़ा ठंडा है, बाद में देखेंगे।
घर के धर्मपत्नी कहेंगे चलो बालोतरा चलना है, सभी का बात करता हूं, मैं एक का बात नहीं करता हूं, क्योंकि उसके आसपास में ही सब है, राजू भाई, पृथ्वीराज जी, सब नजदीक नजदीक में है। तो आप कहेंगे अभी रुको, देखेंगे, अभी घूमने का कोई जरूरत नहीं है। एक एक मनुष्य जन्म का एक एक सांस की कीमत है साहब, क्योंकि मनुष्य जन्म दोबारा मिलना कलयुग में मुमकिन नहीं है, क्योंकि मनुष्य इस कलयुग में जो भी धर्म है वो वापस मनुष्य जन्म नहीं दे पाएंगे, संसार दे पाएंगे। मोक्ष की बात छोड़ दो, संसार देंगे, मगर दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा धर्म अभी हुआ नहीं है। क्योंकि सभी धर्मों में लक्ष्मी की वाहवा है, खुद की वाहवा करने का समय है। और दादा भगवान इस काल में ऐसे हुए, खुद की वाहवा करने के लिए निकले नहीं थे, सिंपल मोक्ष दाता अपने हाथ में मोक्ष रख दे, लिफ्ट मार्ग, तो आपको किसी भी तरह की मेहनत करना नहीं है। और हमारा सबका तार कनेक्शन महाविदेह क्षेत्र में सिमंदर स्वामी अरिहंत परमात्मा के साथ जोड़ दिया। ऐसे दादा भगवान, फिर भी दादा भगवान कहते हैं हम तो भाद्रण के पटेल है, लघुतम पुरुष है, आपकी पुण्य से हम निमित्त बने हैं। कहीं पर भी दादा भगवान ने कामरेज मंदिर, त्रिमंदिर सबसे पहले बनाया, दादा भगवान की प्रत्यक्षता में, उनकी हाजिरी में। वो त्रिमंदिर में भी दादा भगवान ने कहा था हमारा फोटो रखने की जरूरत नहीं है, अगर रखना चाहो तो सिमंदर स्वामी को नमस्कार करते हुए हमारे फोटो रखना। ऐसे दादा भगवान को पहचानना, क्योंकि हम भीतर के कषायों से मजबूर है। इसके लिए कहते हैं ना, कायर बनो ना कोई दी, कष्टों सदा कम पाओ जो। भीतर के कषाय हमको मोक्ष या मोक्ष का आनंद नहीं लेने देंगे। भीतर के कषाय कहीं ना कहीं दूसरों की गलती दिखाकर खुद की गलती को छिपाने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। तो दादा भगवान और तीर्थंकर परमात्मा क्या कहते हैं, कभी हमने पूरे जगत में किसी की गलती ना देखी, गलती तो ना देखी, मगर किसी ने उनकी गलती बताई तो तुरंत स्वीकार किया, सुपात्रे दान। और जहां जहां तीर्थंकर भगवान और दादा भगवान की गलती हुई, वहां उन्होंने खुलकर लोगों के सामने अपनी गलती बता दिया। इसको कहते हैं दिगंबर। अपने मन वाणी काया को सभी के सामने सभी गलतियों को खुला करना, उसको कहते हैं वितराग दिगंबर। हम हमारी गलती कभी भी देख नहीं पाते हैं और दूसरों की गलती इतनी दिखाई देती है। तो आप इस यहां पर रामेश्वर तीर्थ क्षेत्र में देरासर का निर्माण हो रहा है, मगर उस देरासर में किसी भी प्रकार का भेदभाव खड़ा ना हो, यह हमारी प्रार्थना है, यह हमारी बेनती है। आप हमारे कामरेज, सूरत, दादा भगवान त्रिमंदिर, हर जगह त्रिमंदिर बने हुए हैं। बड़ौदा में है, केलनपुरी है, अहमदाबाद है, सब जगह त्रिमंदिर है। कहीं पे भी किसी भी जाति ज्ञाति का भेद रखा नहीं है। आज हमारे मंदिर में दर्शन होते हैं, खाना खाते हैं, कहीं पे भी पैसों का मांगना या तो पैसे का उछामणी, गुजराती में तो हम उछामणी बोलते हैं जी। आप
वो तो कॉमन बात, बोली बोलते हैं। दादा भगवान ने कहा लक्ष्मी के लिए उछामणी करना, बोली करना, तो क्या आपको तीर्थंकर भगवान और शासन देव देवियों के ऊपर विश्वास नहीं है? हमारा दादा भगवान का संघ तो बहुत छोटा था, कैसे ये 10 करोड़ का मंदिर बने, ये भी ताज्जुब आश्चर्य था। तब दादा भगवान ने कहा ये 3 मंदिर, त्रिमंदिर, नौकार मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ये किसी धर्म के मंत्र नहीं थे, किसी संप्रदाय के मंत्र नहीं थे। ये सभी मंत्रों, तीनों मंत्र गुणों के मंत्र है, गुणवाचक है, गुणों की पूजा है, और ये तीनों मंत्र शाश्वत मंत्र है। आज हमें कोई कह दे कि हम राम भगवान को मानते नहीं है, कोई कह दे कि हम रावण को मानते नहीं है, कोई अगर कह दे कि हम लक्ष्मण को मानते नहीं है, कोई कह दे कि हम कृष्ण भगवान को मानते नहीं है, मैं इतना ही कहूंगा, क्या 63 सलाका पुरुषों में ये सबकी गिनती है या नहीं है? 63 सलाका पुरुष, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलराम, 9 वासुदेव और 9 प्रति वासुदेव मोक्ष हाथ में लेकर बैठे हैं। 63 के 63 पुरुष मोक्ष अपनी हथेली में लेकर बैठे हैं। मोक्ष जाने की जल्दी नहीं है इनको, भले ही 5 बहु, 10 बहु, 15 बहु भले ही हो जाए। रावण जैसा रावण तीर्थंकर बनके जगत के कल्याण, निष्पक्षपाती कृष्ण भगवान तीर्थंकर, आप देखो तो सही, राम भगवान बलराम और अभी मोक्ष में है, नमो सिद्धाणम कहलाते हैं। मगर क्या होता है, जो भी मंदिर करते हैं, देरासर करते हैं, अपने अपने नियम बन जाते हैं, एक बाउंड्री बना लेते हैं। अरे तीर्थंकर भगवान के पास कोई बाउंड्री है? तीर्थंकर भगवान को तो किसी ने दूर से भी दर्शन कर लिए ना, उसका काम बन जावे। उसमें भी नमो अर्यंताणम, जीवित हाजर तीर्थंकर, क्योंकि नौकार मंत्र में भी पहला सेंटेंस नमो अरिहंताणम है और दूसरा नमो सिद्धाणम है। जो आकर सिद्ध हो गए, सिद्धाणम हो गए, मोक्ष में गए, उसको नमो सिद्धाणम कहते हैं। और जो अभी मोक्ष लेकर आयुष्य कर्म बाकी है, जीवित है, उसको नमो अरिहंताणम कहते हैं। इसके लिए दादा भगवान ने कहा जहां जहां सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति होती जाएगी, उतना उतना भारत देश का कल्याण अपने आप होते जाएगा। ये यहाँ पर सिमंदर स्वामी भगवान की फोटो रखी है। ये कामरेज सूरत त्रिमंदिर में जो मूर्ति रखा है 12 फुट 1 इंच की, यही सिमंदर स्वामी भगवान का फोटो और नीचे दादा भगवान। और ये सिमंदर स्वामी भगवान की प्रतिमा आप जहां पर देरासर का निर्माण हो रहा है, वही ऑफिस में पेडी में आप वहां पे ये विराजित करोगे। ये सभी शायक संकितधारी महात्माओं का शायक संकित। नैनमल जी, मैंने मेरी 2 बुआ, मेरी उम्र थी तब 12वीं स्टैंडर्ड में, 12th में था मैं, 11th पास किया, 12th में था। और मेरी 2 बुआ ने दीक्षा ले रखा है, अभी भी है, अभी भी है, बहुत उम्र है, करीब करीब 80 साल के होंगे वो। तब मैं गया, तब मेरी 2 बुआ ने कहा शायक संकित मतलब तू जानता है? मैं तो स्कूल में दादा भगवान मिले, कॉलेज में गए दादा भगवान से सुना, क्योंकि ये कलयुग का पंचम आरे का एक अपवाद अच्छे रूप, जैसे 10 अच्छे रूप हुए,
10 आश्चर्य अपवाद हुए और 11वां आश्चर्य कली काल में होने वाला था। संसारी वेश में होते हुए भी यहाँ पे 70वें तीर्थंकर कुंथुनाथ स्वामी इस भूमि पे विचर रहे थे। 70वें तीर्थंकर कुंथुनाथ स्वामी यहाँ पर विचर रहे थे। कुंथुनाथ स्वामी को केवल ज्ञान, तीर्थंकर और केवल ज्ञान, कुंथुनाथ स्वामी यहाँ पर सभी उनके पास से मोक्ष में जाते थे। तब उसी समय महाविदेह क्षेत्र में सिमंदर स्वामी परमात्मा का जन्म होना, जिसको जन्म कल्याणक कहते हैं। कुंथुनाथ स्वामी भगवान को केवल ज्ञान में उत्कृष्ट पुरुष दिखाई देते हैं। उन्होंने देख लिया लिंक, ये सिमंदर स्वामी भगवान का ये भरत क्षेत्र के साथ क्या लिंक है। तो उन्होंने कहा, कुंथुनाथ स्वामी ने अति 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 सरल मोक्ष मार्ग, संसार में रहते हुए, घर में रहते हुए मोक्ष दाता पुरुष कलयुग में जन्म लेने वाले हैं। और उनका अनुसंधान था, एक जन्म आपको महाविदेह क्षेत्र में सिमंदर स्वामी का जन्म लेने के बाद ही हम मोक्ष में जा सकते हैं। ये बात जब कहा तो ये आश्चर्य, ये कैसा आश्चर्य, ना व्रत, ना पचकाण, ना उपवास, ना कुछ, फिर भी हमें हमारे भीतर है शुद्धात्मा का अनुभव होना। तो इस जगह पे पेड़ी में सिमंदर स्वामी भगवान का दर्शन करें और सभी जीवों को ये रामेश्वर तीर्थ में सुख और शांति प्राप्त हो और मोक्ष का अनुसंधान मिले। इसी वजह से ये मदुराई के महात्माओं ने कीर्तन भक्ति रखा है कि रामेश्वर तीर्थ में जो भी दर्शन करने आए, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करे। तो ये क्षेत्र में कीर्तन भक्ति 24 घंटे की अपने खुद के स्वरूप की करने का मकसद एक ही था कि सभी को यहाँ पर आते ही सुख शांति मिले और आगे मोक्ष का अनुसंधान मिले। ये पूरा श्रेय जस मदुराई के महात्माओं के पास जाता है। धन्य है मदुराई के महात्मा है। गिनती में कहो तो 10 महात्मा, 15 महात्मा, 20 महात्मा, फिर भी आपने क्या ये दूसरी बार कीर्तन भक्ति की और सभी का महात्माओं का कुछ ना कुछ ये कीर्तन भक्ति में योगदान रहता है। क्यों? तो क्या हमें भी कमाई करना भूलना नहीं है। और इतने महात्माओं ने इतना बड़ा कीर्तन भक्ति यात्रा और यहाँ पर विराजमान रामेश्वर तीर्थ में जैन देरासर के अग्रणी, आपका खूब खूब हम हृदय से नमस्कार करते हैं साहब, प्रणाम करते हैं। हमारी विनती को स्वीकार कर आप पधारे और हम कुछ ना कुछ तो कर पाए। हमारी शक्ति के हिसाब से आपको हृदय से हम कहते हैं कि पेड़ी में ये सिमंदर स्वामी भगवान रखो तो यहाँ वहां पर भी हर दिन कुछ पूजा हो जाए, क्योंकि ये जीवित तीर्थंकर है। और जहां पे जीवित तीर्थंकर होंगे तो वो क्षेत्र में आपको किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी साहब, क्योंकि आपकी भावना, आपकी प्रार्थना और हम शायक संकितधारी महात्मा, ये दादा भगवान से दृष्टि पाई है साहब, सभी ने दृष्टि पाई है। आपके भीतर शुद्धात्मा का, परमात्मा का दर्शन करते हैं और चमड़े की आंख से चमड़ों का दर्शन करते हैं। और जैसे बिछड़ जाएंगे ना, सभी महात्मा भीतर प्रतिक्रमण करेंगे। कुछ बोलने में क्षति हुई हो
दुख पहुंचा हो तो तुरंत प्रतिक्रमण करने वाले क्षायक समकितधारी महात्मा, आप ये कीर्तन भक्ति में आए, हम भी आपको हृदय से प्रणाम धन्य कहते हैं। और इतना कहते हैं, उस मंदिर में जब भी हमारे दादा भगवान के आए तो आप बेफिक्र दर्शन की आप आज्ञा करना। आपके मूल नायक मुझे पता नहीं है, मूल नायक सुमतीनाथ जी, हाँ वो तो पता है, मैं जैन हूं। सुमतीनाथ जी और कितने कितने प्रतिमा कितनी है प्रतिमा? 41 या 51? 41, 41। बहुत बढ़िया। हाँ जी, मुझे मिले ना, मुझे आए, मिलने आए ना, उनके साथ एक और भी थे, हाँ बाहर मिले मिले। ये जहां पर ये सिमंदर स्वामी भगवान की प्रतिमा विराजमान करने वाले हैं, वो पेढ़ी में तो हर एक आदमी को आना पड़ता है, वो ऑफिस है। और उनका कहना है कि वहां पे कोई भी आए, सभी को ठहरने की, रहने की, खाने की, और मौका मिला तो 24 घंटे की कीर्तन भक्ति वहां लगा देंगे हम। हमको रूम नहीं चाहिए, हमको हम कल वहां पर नैनमल जी हमको लेकर गए, हम जाके आए, बहुत अच्छा है, बहुत जगह पवित्र है, सही में काम अपने आप हो जाएगा। मगर वहां पे भी ये दादा भगवान की कीर्तन भक्ति हो जाए, और उस मंदिर में हमको ठहरने की ऐसी नहीं है, हमको मम्मम चाहिए और भजन चाहिए, दो चीज चाहिए। बोलो महात्मा, उतना चाहिए ना? देखो नहीं साहब, हमारा भी यही, नैनमल जी और पृथ्वीराज जी, राजू भाई, सबने आप यहाँ पधारे वही, और प्रसाद लिए बगैर आपको जाना नहीं है, फिर भी आपकी जैसी अनुकूलता, कोई बात नहीं। और खास तो आप दोनों को एक जिम्मेदारी है। आइए 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 आइए। चितमल जी, अच्छा वो भी ट्रस्टी है। हम आप बिराजे बिराजे, आप बिराजो बिराजो साहब, बिराजो बिराजो। हम त्राणे काले हरिहंत महाउपकारी, त्राणे काले हरिहंत महाउपकारी, वर्तमाने विहरणा सिमंदर स्वामी, वर्तमाने विहरणा सिमंदर स्वामी, जड़ हड़ता दीवड़ाती तेरा सरसो बजो, जड़ हड़ता दीवड़ाती तेरा सरसो बजो, जीने स्वर सिमंदर ना जाप नाम उपजो, जीने स्वर सिमंदर ना जाप नाम उपजो, मनोहारी मूर्तिनी सन्मुखे ज स्थापना, मनोहारी मूर्तिनी सन्मुखे ज स्थापना,
अपना कस्तूरी चंदन केसरती स्पर्शु चरण आपना कस्तूरी चंदन केसरती स्पर्शु चरण आपना रणझणता स्वर ताले भावना हो जो जड़ जड़ता स्वर ताले भावना हो जो सीमंदर स्वामी जी ने आंगी मुंगट सोहजो सीमंदर स्वामी जी ने आगी मुकट सोहजो स्वामी तमने निरखता निखरता सौआत्मा स्वामी तमने निरखता निखरता सौआत्मा प्रकृति ये खुली पाखे उड़े जे आकाश मां प्रकृति ये खुली पाके उड़े जे आकाश मां झड़ झड़ता घूंघराती नर्तना हो जो जड़ जड़ता घूंघराती नर्तना हो जो सीमंदर स्वामी जी ने कीर्तना फोर जो सीमंदर स्वामी जी ने कीर्तना फोर जो भड़के बरता कड़ी काड़े शीतलकारी सीमंदर बढ़के बढ़ता काड़ी काड़े शीतलकारी सीमंदर वर्तमाने मोक्षाश्रवती बाह्यांतर माछु मंतर वर्तमाने मोक्षाश्रवती बाह्यांतर माचु मंतर कण कण मा आत्माना आविष्कार हो जो कण कण मा आत्माना आविष्कार हो जो सीमंदर स्वामी जीना स्वरूपम श्रृंगार जो श्रीमंदर स्वामी जीना स्वरूपम श्रृंगार जो आप सभी अग्रणी को तीर्थंकर भगवान जब हाजिर होते हैं तब पहचान नहीं पाते हैं और हमारे पास सारी भक्ति सिमंदर स्वामी परमात्मा के प्रति है क्योंकि हमारे सिमंदर स्वामी भगवान है 12 फुट 1 इंच के भगवान है। साथ में सिद्ध भगवान भी रखे हैं, ऋषभदेव भगवान, अजीतनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर स्वामी। यहां तक मैं कहूंगा साहब, आप सभी पधारे हो तो कामरेज सूरत त्रिमंदिर में जो तीर्थंकर हो गए 24 वर्तमान नमो सिद्धाणम उनकी है। अभी महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर स्वामी भगवान उनकी प्रतिमा है और जो होने वाले हैं उसमें पहले तीर्थंकर पद्मनाभ प्रभु पद्मनाभ स्वामी, ये सभी और हमारा अभी सबकी भक्ति दादा भगवान की आज्ञा से सिमंदर स्वामी की हम निरंतर आराधना करते हैं। इस 14-15 अप्रैल को सिमंदर स्वामी जन्म कल्याण मनाएंगे हम मंदिर में और 4 अप्रैल को महावीर जयंती के साथ सिमंदर स्वामी परमात्मा का केवल ज्ञान कल्याण मनाएंगे। वहां पर भी ये भक्ति के पद गाकर हम पूजा अर्चना करेंगे। 2 लाइन आगे। आखी ये जीव राशि ने शासन रसिया करवानी, ये जीव राशि है शासन रसिया कर
आपो हे वितरागी सर्वस्वं वो श्रियामि शक्ति आपो हे वितरागी सर्वस्वं वो श्रीरामी सणता वायराना तीरनो लक्ष्य जो सणसणता वायराना तीरनो लक्ष्य जो ब्रह्मांडो विंदता कैवल्य दीप जो ब्रह्मांडो विंदता कैवल्य दीप जो झळहळता दीवडाती तेरा सरसोब जो झळहळता दीवडाती तेरा सरसोब जो स्वर सिमंदरना काप नाम ओपजो जिनेश्वर सिमंदरना जाप नाम उपजो जिनेश्वर सिमंदरना काप नाम ओपजो जिनेश्वर सिमंदरना जाप नाम उपजो। ऐसा ही त्रिमंदिर हमारा अहमदाबाद में अडालज, इतने ही सिमंदर स्वामी परमात्मा, और तीनों मंदिर में हम गुणों की पूजा करते हैं। ज्यादातर लोग यही मानते हैं व्यक्ति की पूजा होती है, शरीर की पूजा होती है, शरीर को नमस्कार करते हैं। तीर्थंकर भगवान मुझे जीवित सिमंदर स्वामी प्रत्यक्ष मुझे मिले तो मैं उनको देखकर साष्टांग दंडवत करूंगा। लोग माने या ना माने, भीतर केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। और जो देह में, देह मतलब देहरासर, देहरासर शब्द आया कहां से? देह में होते हुए भी परमात्मा प्रकट हुए हैं। उस देह को देहरासर कहा। और उस देहरासर मंदिर की पूरी डिजाइन भी पद्मासन रूप में ही बनती है। जैसे भीतर भगवान है, मंदिर बना दिया आपने, आपने मंदिर बना दिया, मगर भीतर मूर्ति प्रतिमा जी नहीं बिठाए तो मंदिर की क्या वैल्यू है साहब? समझ रहे हैं ना साहब? मंदिर की वैल्यू कहां तक है? भीतर भगवान प्रतिमा हो और प्रतिष्ठा की हो तो मूर्ति के साथ मंदिर की भी कीमत बढ़ जाती है। इसी तरह ये शरीर, मन, वाणी, काया मंदिर है, मगर भीतर बैठे परमात्मा प्रकट नहीं हुए तो इसकी वैल्यू क्या? पूरी जिंदगी इसकी वैल्यू की और सांस खत्म हो गई तो घर के लोग भी रखने को तैयार नहीं है। 50 साल शादी के हुए, वो शादी को मनाने को तैयार है कि हमने दोनों ने 50 साल हुए शादी हुए, इतना याद करते, मगर 51 साल पे चल बसे तो साथ में घर वाले नहीं जाएंगे। जाएंगे साहब? नहीं कि निकालो, रोते जाएंगे और उंगली में से अंगूठी निकालते जाएंगे। सही बात है साहब? क्या किसकी कीमत है? हम तो सोच रहे थे कि हमारी वैल्यू है हमारे घर में, मगर मरे तो उन्होंने देखा चैन पहना है, रोते जाओ चैन निकालते जाओ, रोते जाओ अंगूठी निकालते जाओ, और फिर देख लिया कुछ है नहीं ना तो रोते रोते जाने दो, जाने दो। और हमें पूरी जिंदगी हमको लगा हमारी वैल्यू है। अरे साहब, तीर्थंकर भगवान ऐसे अनंत 24 होकर चली गई और अनंत 24 होकर किसी ने कहा नहीं कि हमारी मूर्ति बिठाना। हम जीवित है तो हमारे पास आकर काम निकाल लेना। जाने के बाद ऋषभदेव के बाद अजितनाथ, अजितनाथ के बाद संभवनाथ, अभिनंदननाथ, ऐसे चलता ही रहता है। तो बस हमारे यही, और ये
एक 2 लाइन पदों की और ले, आपके टाइम समय है ना? कोई हाँ, नहीं तो मैं वो नोटों का मशीन दे दूं। ठीक है, ठीक है सर। सिमंदर स्वामी आओ रे, सिमंदर स्वामी आओ रे, मुक्ति द्वार उघाड़ो रे, मुक्ति द्वार उघाड़ो रे, करुणा जड़ बरसावो रे, करुणा जड़ बरसावो रे, चार गति थी छोड़ावो रे, चार गति थी छोड़ावो रे, सिमंदर स्वामी आओ रे, सिमंदर स्वामी आओ रे, मुक्ति द्वार उघाड़ो रे, मुक्ति द्वार उघाड़ो रे, करुणा जड़ बरसावो रे, करुणा जड़ बरसावो रे, चार गति थी छोड़ावो रे, चार गति थी छोड़ावो रे, चार गति थी छोड़ावो रे, चार गति थी छोड़ावो। स्वामी सिमंदर भगवान, स्वामी सिमंदर भगवान, मेरो केवल ज्ञान उघाड़, मेरो केवल ज्ञान उघाड़, सेवक आयो तेरे दार, सेवक आयो तेरे दार, भेजो दादा भगवान, भेजो दादा भगवान, रिलेटिव में सच माण्यो, रिलेटिव में सच माण्यो, कसाय घर में जी माण्यो, कसाय घर में जी माण्यो, व्यभिचर घी मन कंठारी, व्यभिचरनी मन कंठारी, भावो जीवते भटक्यो में, भावो जीवते भटक्यो में, उद्गल रस लूप तक बेभान, उद्गल रस लूप तक बेभान, खाणो पीणो खूद्यो हराम, खाणो पीणो खूद्यो हराम, स्वामी सिमंदर भगवान, स्वामी सिमंदर भगवान, मेरो केवल ज्ञान उघाड़, मेरो केवल ज्ञान उघाड़, विषयो भव भव टेव्या छे, विषयो भव भव टेव्या छे, सद्गुरु नहीं सेव्या में, सद्गुरु नहीं सेव्या में, तुम जो साध्यो दादाए, तुम जो साध्यो दादाए, कृपा करुण्या आकर में, कृपा करुण्या आकर में, मेरो मुजरो लो स्वीकार, मेरो मुजरो लो स्वीकार, अब तो संकित कर अवघाड़, अब तो संकित कर अवघाड़, खटपट करके दादा ने, खटपट करके दादा ने, भीतर भावो शुद्ध किया, भीतर भावो शुद्ध किया, अदबद कारण आज्ञा के, अदबद कारण आज्ञा के,
कचरा हमसे नहीं निकला, कचरा हमसे नहीं निकला। हम जो मन रोचित नाहात, हम जो मन रोचित नाहात, अव्यय ध्रुकर उत्पादन, अव्यय ध्रुकर उत्पादन। स्वामी सिमंदर भगवान, स्वामी सिमंदर भगवान। मेरो केवल ज्ञान उघाड़, मेरो केवल ज्ञान उघाड़। हे सिमंदर स्वामी, हे सिमंदर स्वामी। तुम शरणो माले जो, तुम शरणो माले जो। हे केवल संधानी, हे केवल संधानी। भव पार करी दे जो, भव पार करी दे जो। તમે પોતે પ્રતિનિધિ, તમે પોતે પ્રતિનિધિ, અને જાતે હાજર છો, અને જાતે હાજર છો। મૂર્તિના દર્શનથી, મૂર્તિના દર્શનથી, અમૂર્તની ઓળખ છો, અમૂર્તની ઓળખ છો। દિલને જાગૃત કર, નિદ્રિલને જાગૃત કર। નિત સપના મારે જો, નિત સપના મારે જો। હે સિમંદર સ્વામી, હે સિમંદર સ્વામી। પાર કરી દેજો, ભવ પાર કરી દેજો। तुम शरणो माले जो, तुम शरणो माले जो। अंत में सभी धर्मों में क्रिया से ज्यादा क्रिया, उपवास, व्रत, नियम से भी कहीं गुना ज्यादा भाव की कीमत है। जैसा भाव वैसा भाव प्राप्त होता है। सभी धर्मों में आपके भाव कैसे है उस प्रकार नया जन्म होता है। इसके लिए यहाँ पर जो भी આપણે ગુજરાતથી બધા આવ્યા છો, બધા સાંભળી લેજો 2 મિનિટ માટે। આરતી પછી पहला बहनों जम्मा जसे, नैनमल जी ठीक है ना, पहला बहनों जम्मा जसे, थोड़ा समय पछी भाईओ जम्मा जसे, कारण के व्यवस्था सचवाय अने बहु सारी रीते जमीने आ जग्या परथी 3-3:30 सुधीमां बाजुमां प्रणामी मंगल मंदिर, कृष्ण प्रणामी मंगल मंदिर में बधाए 3-3:30 सामान लईने नीचे आवी जवानुं रहेशे। बधा पोतानी पासे पास राखी मूकजो। अहींया जमती वखते पास आपता नहीं, प्रभावना त्यां मळवानी छे।
મદુરાઈના મહાત્માઓ તરફથી દરેકને વ્યક્તિ દીઠ માથા દીઠ પર હેડ પ્રભાવના મળવાની છે. એ પાસ લેશું અને પ્રભાવના આપશું. તરત જ તમારે બેગમાં મુકાઈ જાય, અલગથી ઉપાડવી ના પડે. 4-4:30 ની આસપાસ જે મદુરાઈ જવાના છો એ બસ આવી જશે. ચા પાણીની વ્યवस्था પણ 3:30 વાગે यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर प्रणामी मंदिर में रख देंगे हमारे लिए, हमारी सुविधा के लिए. मदुराई के महात्माओं ने सारी सुविधा हमारी करके रखा है. पहला मैं एम कीधु कि बधा अहींया आवी जजो. अमुक महात्मा के सामान लईने क्या आवीए ने आम ने तेम ने. त्या खबर पड़ी कि कई वांधो नहीं, अमे त्या आवशुं. चा पण अहींयाथी बनावीने त्या मोकलशुं અને સાથે પાસ બધા રાખજો. અત્યારે 3-4 કોઈ છે પ્રભાવના? હે? हाँ यार, आप हमारी छोटी सी प्रभावना आप स्वीकार करना. हम सभी महात्माओं के लिए लाए प्रभावना. हम आप चारों को कहता हूं, चारों को. हम सभी महात्माओं को ही देते रहते हैं. हमारे यहाँ पैसा लेने का सिस्टम नहीं है, देने का सिस्टम है, पूरा अलग है. इसके लिए ये लोग गलती से ये कलयुग में आ गए, गलती से. मैं तो कलयुग का ही हूं क्योंकि मैं तो जैन हूं. ये पूरे कैसे दिए, कैसे हम ये पैसों का भगवान के पीछे खर्च करते रहे बिना मांगे, बिना कुछ किए. तब जाके हमारे भाव वहां पे भगवान स्वीकार करते हैं. और भाव का स्वीकार होना मतलब भगवान की परमिशन मिलना. क्योंकि मनुष्य जन्म बार बार मिले तो भगवान मिलेंगे. अगर मनुष्य जन्म दोबारा नहीं मिला तो भगवान को कहां ढूंढूं? और ऐसे भी अभी खड़ा हो जाता हूं, धीरे धीरे ऊपर आया मैं. और ऐसे भी आप देखोगे तो मनुष्य जन्म में ही परमात्मा की पहचान करके परमात्मा बनने का रास्ता मनुष्य में है. इसके लिए सभी 84 लाख जीवों में मनुष्य जन्म उत्तम पवित्र बताया है साहब. मगर अभी हमारा समय, हमारा टाइम ऐसे कर्मों के हिसाब लेकर आए हैं पिछले जन्मों के कि कहीं पे भी हमें फुर्सत मिलती नहीं है. अगर फुर्सत मिले ना, हमको लगा चलो 1 घंटा सो जाते हैं. ये सब चले गए, दिलीप भाई, दिनेश भाई, पृथ्वीराज जी चले गए, चलो 1 घंटा सो जाते हैं. तो जेब में कोई ना कोई बोलता रहता है, ट्रेन ट्रेन. होता है कि नहीं होता है साहब? शांति से सोने नहीं देते. उठाओ फोन, उठाओ फोन, उठाओ फोन, उठाओ फोन, उठाओ तो खाली इतना बोलेंगे, तमे क्यारे निकलवाना. हमारी गुजराती में हम आपस में ही अपन मसिया भाई है. गुजरात राजस्थान एक हो गए तो सब हाँ हम जानते हैं. और हमारा परिचय दादा भगवान का भी परिचय राजस्थान जोधपुर के पास तिवरी, मथानिया तिवरी, वहां पे हमारा बहुत बड़ा सेंटर है. नेशनल हैंडलूम वाले ललित शाह जोधपुर. अभी उनका देहांत हुआ, मगर अभी है, क्षेत्र भी है. पानी की कमी की वजह से 3-4 साल से हम शिविर कर नहीं पाते. नहीं तो एक शिविर में 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 आदमी आए, सभी को मुफ्त और केवल सत्संग भक्ति. मेरी तो आप चारों पधारो साहब. 5 है, 5 कौन है? तो मार को रखो ना माला पहन के. दिलीप भाई
સિમંદર સ્વામીને અર્પણ કરીને આપજો. હા હા હા, સાથે સાથે. બસ બસ. સિમંદર સ્વામી ભગવાનને પ્રભાવના અર્પણ કરીએ છીએ. દાદા ભગવાનને પ્રભાવના અર્પણ કરી કીર્તન ભક્તિમાં. સિમંદર સ્વામી ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા પણ આપણે બધાએ ગઈકાલે પુષ્પ ફૂલોથી પ્રતિષ્ઠા કરી અને 24 કલાક કીર્તન ભક્તિ માં સિમંદર સ્વામી ભગવાન હાજરા હજુર. ધન્ય છે આપણા મહાત્માઓ. આપણે ભગવાન પાસે જવું પડે, ભગવાન આપણી પાસે ના આવે. એટલા બધા કઈ આપણે કઈ ગયેલા નથી. હા ઠીક છે, જમવાનું ના મળે તો કદાચ પારો ચડી જાય. सभी को अग्रणी मेहमानों को બધા દાદા ગુરુદેવના મેમ્બરોથી કે તમે બધાય આપણી મંદિરની જગ્યા જોઈને જ આવે, એને સિવાય કોઈ આગળ પગ ન રાખે, એ મારી વિનંતી છે બધા સાથે. मैं इतने टाइम से हिंदी में देते रहा और आपने 2 मिनट में गुजराती कर दिया. बधाने विनंती છે, બધા ત્યાં પગે ત્યાં પગ મૂકીને આ જાય. બોલો, આપણે હિન્દીમાં દે દે કહ્યું. પધારો સા પ્રભાવના. ચાલો દિલીપભાઈ, આરતી કરીએ. બીજું કઈ છે? બધાના પ્રતિભાવ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. સર્વમાત્માઓ, સર્વ આપ્ત પુત્રો, हमारा मदुरैना महात्माओं हिंदी नहीं आता है, तमिल में बोलूंगा. आमंत्रण स्वीकारीने બધા આપ્ત પુત્ર આવેલા છે, એ બધાને અમારા નમસ્કાર છે અને હાર્ટીલી વેલકમ કરીએ છીએ. ફરી ને ફરી પાછા આવો બધા અહીંયા કાલે. હા, सब आएंगे અને બધા મહાત્માઓને જે બધા અહીંયા દૂર દૂરથી પધાર્યા છે, આપણા સુરત ને બોમ્બે, અમદાવાદ, ભાદરણ, બધી જગ્યાએથી પધાર્યા છે. અલવર, હા, અલવરમાં તો બહુ દૂર, વધારેમાં વધારે દૂર અલવર વાળા આવેલા છે. એ બધાને બહુ જયપુર અલવર અલવર બોલ દિયા, અલવર બોલ દિયા. આ તો મારે એટલું જ કહેવું છે કે અમારા મદુરાઈના મહાત્માઓથી કાંઈ સેવામાં તમને અગવડ પડી હોય તો અમે બધાની માફી માંગીએ છીએ અને ફરીવાર નહીં થાય એવી અમે ગેરંટી આપીએ છીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જે 4 બસો આપણે જાત્રામાં કન્યાકુમારી ગયા હતા અને હજી 2 બસો 19 જવાની છે, તો એના માટે આ જે 2 ટ્રસ્ટીઓ રાજુભાઈ અને પદ્ધર અમારે મદુરાઈમાં અમદાનગરમાં અમારી સાથે જ છે, અમારી મિત્રતા છે. જૈનો સિવાય આપતા નથી. એમને વાત કરી, તરત જ પરમિશન આપી અને આપણા મહાત્માઓને કન્યાકુમારીમાં જે રહેવાની સગવડતા કરી આપી, એ બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય શ્રી કન્યાકુમારીની વ્યવસ્થા સારામાં સારી એના મુખ્ય પોતે છે राजूभाई, हाँ जी, हाँ जी। राजूभाई, जय उनकी सच्चिदानंद। उनके निमित्त से हमें ये पूरा व्यवस्था करने में आसान हुआ. चलो आरती બીજા કોઈને हार बोलाओ ना, हार બોલાવો છો? ना खाली पूजा कराई ले. અચ્છા, પંકજભાઈ થાળ બોલાવશો? ચાલો. विधि થઈ ગઈ થાળની. થાળની વિધિ થઈ ગઈ, જતો રહ્યો.
ચાલો કનૈયાભાઈ આવ છે તમે થાવ છો ને તું મંજીરા જો બંસીભાઈ મંજીરા જો કનૈયાભાઈ આવી જા મૂકો બીજી ખુરશી જોતી હોય તો મોકલે દિલીપભાઈ ખુરશી આપે બીજી ખુરશી આપે साहब जी ये दादा भगवान जब थे तब गुजरात से होकर बॉम्बे जाते थे तो बीच में एक छोटा सा गांव आता था किला पाड़ी वापी वलसाड़ के बाद वापी के पहले वहां पे हमारे बहुत सामान्य स्थिति वाले महात्मा सब हाँ वापी में चौक्कस साहब चौक तो जहां दादा भगवान जाते थे तो दादा इन लोग की छोटे छोटे घर और छोटे घर में प्रसाद रखते थे तो प्रसाद रखने के पहले वो एक अपना भक्ति का थाल बोलते ना प्रसाद धराया तो कैसे भगवान को कैसे तो वो आज इनकी आवाज में वो खुद सभी आए हैं किला पाड़ी के हैं सब बहुत अच्छे आपको भी पसंद आएगा चलिए जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद मारी झूपड़िए पधार्या रे मूर्जी जवेरवाना लाला मारा मन मानंद थाए रे ओ लाला मारा मन आनंद थाए ओ मारी झूपड़िए पधार्या रे तेरी वड़ावो ने साफ करावो आंगण चौक पुरावो मारा दादा तेरी बड़ा साफ कराऊ आंगण चौक पूरा मारा दादा तोरण बंधाऊ तोरण बंधाऊ दादा टोपी वाला रे दादा मुर्जी जवेर बना लाला एमा मन आनंद थाए रे ओ मारी झूपड़िए पधार्या रे मुर्जी जवेर बना लाला मारा मन आनंद थाए रे ओ मारी झूपड़िए पधार्या रे सर्वज्ञानी घेरे पधार्या प्रेम पकारो पाए मारा दादा सर्वज्ञानी घेरे पधार्या प्रेम पखारू पाई मारा दादा विजन वायु डोरू विजन वायु डोलो निरखी जाओ मारा दादा मुर्जी जवेर बाना लाला हे मारा मन मानंद थाए रे ओ मारी झूपड़िए पधार्या रे मुर्जी जवेर बाना लाला
મનમાં આનંદ થાય રે ઓ મારી ઝૂંપડીએ પધાર્યા રે રૂપા તે કેરો બાજટો ને કંચન કેરી તાર મારા દાદા રૂપા કે કેરો બાજટો ને કંચન કેરી તાળ મારા દાદા દાદા પીરત ને મારા વાલા હીરા બારે પીરસને મારા વાલા હીરા તમે પીરત ને મારા વાલા હીરા બા તમને આરોગો ભગવાન મારા દાદા મૂળજી ઝવેર બાના લાલા કે મારા મનમાં આનંદ થાય રે ઓ મારી ઝૂંપડીએ પધાર્યા રે મૂળજી ઝવેર બાના લાલા મારા મનમાં આનંદ થાય રે ઓ મારી ઝૂંપડીએ પધાર્યા રે દેવસુવારી લાપતી ને ગણગણીઓ કહું તાર મારા દાદા સેવા સુવાડી લાપસીને ગણગણીઓ કંસાર મારા દાદા તાવ્યા તો ઘી ગવરી તણા રે કાવ્યા તો ઘી ગૌરી તણા રે તાવ્યા તો ઘી ગવરી તણા રે હું તો કોબલે પીર તું ધાર મારા દાદા મૂળજી ઝવેર બાના લાલા હે મારા મનમાં આનંદ થાય રે ઓ મારી ઝૂંપડીએ પધાર્યા રે મૂળજી ઝવેર બાના લાલા મારા મનમાં આનંદ થાય રે ઓ મારી ઝૂંપડીએ પધાર્યા રે આંબો તે મોર્યો લાજ માને જાંબુ તે લે રે જાય મારા દાદા આંબો તે મોર્યો રાજમાને જાંબુ તે મેરી રાય મારા દાદા આવું તો ભીંજે મારી ચૂંદડી રે આવું તો ભીંજે મારી ચૂંદડી રે હે આવું તો ભીંજે મારી ચૂંદડી વરસે હલો. મેં ભૂલિયો વરદાદ મારા દાદા મૂળજી ઝવેર બાના લાલા હે મારા મનમાં આનંદ થાય રે ઓ હો મારી ઝૂંપડીએ પધાર્યા રે મૂળજી ઝવેર બાના લાલા મારા મનમાં આનંદ થાય રે ઓ મારી ઝૂંપડીએ પધાર્યા રે આંબો તે મોર્યો લાજ માને જાંબુ તે લે રે જાય મારા દાદા આંબો તે મોર્યો રાજમાને જાંબુ તે મેરી જાય મારા દાદા આવું તો ભીંજે મારી ચૂંદડી રે આવું તો ભીંજે મારી ચૂંદડી રે આવું તો ભીંજે મારી ચૂંદડી વર્તે મેં ભૂલિયો વરસાદ મારા દાદા મૂળજી ઝવેર બાના લાલા હે મારા મનમાં આનંદ થાય રે ઓ મારી ઝૂંપડીએ પધાર્યા રે મલણ લાવી મોગરો ને કાચી કડીનો હાર મારા દાદા માલણ લાવી મોગરો ને કાચી કડીનો હાર
મોગેરો ને કાચી કડી નો હાર મારા દાદા માલણ લાવી મોગરો ને કાચી કડીનો હાર મારા દાદા નટૈયાનો સ્વામી મળ્યો રે નરસૈયાનો સ્વામી મળ્યો રે નટૈયાનો સ્વામી મળ્યો મારે હૈયે હરખ નહીં માય મારા દાદા મૂળજી ઝવેર બાના લાલા હે મારા મનમાં આનંદ થાય રે ઓ મારી ઝૂંપડીએ પધાર્યા રે મૂળજી ઝવેર બાના લાલા મારા મનમાં આનંદ થાય રે ઓ મારી ઝૂંપડીએ પધાર્યા રે માલણ લાવી મોગરો ને કાચી કરી નો હાર મારા દાદા માલણ લાવી મોગરો ને કાચી કડીનો હાર મારા દાદા નટૈયાનો સ્વામી મળ્યો રે નરસૈયાનો સ્વામી મળ્યો રે નટૈયાનો સ્વામી મળ્યો મારે હૈયે હરખ નહીં માય મારા દાદા મૂળજી ઝવેર બાના લાલા હે મારા મનમાં આનંદ થાય રે ઓ મારી ઝૂંપડીએ પધાર્યા રે ઝવેર બાના લાલા મારા મનમાં આનંદ થાય રે ઓ મારી ઝૂંપડીએ પધાર્યા રે અરે આજનો લાવો લીજીએ રે કાલ કોણે દીધી છે આજનો લાવો લીજીએ રે કાલ કોણે દીધી છે કોણે દીધી રે કાલ કોણે દીધી કાલ કોણે દીધી છે કાલ કોણે દીધી છે મારા કોણે દીધી રે કાલ કોણે દીધી કાલ કોણે દીધી છે કાલ કોણે દીધી છે મારા દાદા ભગવાન ને ભજીએ રે કાલ કોણે દીધી છે દાદા ભગવાન ને ભજીએ રે કાલ કોણે દીધી અરે ઉડે 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 રે આજ ઉડે ગુલાબ ઉડે 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 રે આજ ઉડે ગુલાલ લાલ ઉડે ગુલાલ લાલ ઉડે ગુલાલ આ ઉડે ગુલાલ આ ઉડે ગુલાલ ગયા ભગવાન ને આંગણે રે આજે ઉડે ગુલાલ મારા ગાયા ભગવાન ને આંગણે રે આંગ ઉડે ગુલાલ અમારા દાદા ભગવાન ને આંગણે રે આજે ઉડે ગુલાલ મારા દાદા ભગવાન ને આંગણે રે આજ ઉડે ગુલાલ દાદા ભગવાન ને ભજીએ રે કાલ કોણે દીધી છે દાદા ભગવાન ને ભજીએ રે કાલ કોણે દીધી મારા દાદા ભગવાન ને ભજીએ રે કાલ કોણે દીધી છે દાદા ભગવાન ને ભજીએ રે કાલ કોણે દીધી જય सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। साहब जी आपको खाली एक ही बात, बैठिए, बिराजो साहब, बिराजो, आइए 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 आइए, रह नहीं पाते। જો તમે જરા બધાય સાંભળજો, મને ગુજરાતી આવે છે. એમ કે એમ અમે અહીંયા જો રામેશ્વરનું તમે મંદિર જોયું, એમાં હું 2 વર્ષ તમિલનાડુ ગવર્મેન્ટથી ટ્રસ્ટી હતો. એ મંદિરમાં, મેન મંદિરમાં 2 સાલ તમિલનાડુ ગવર્મેન્ટથી ત્યાં અહીંયા ટ્રસ્ટી હતો. ત્યારે જ મારે મનમાં ભાવના આવી કે અમારે જૈન લોકો અહીંયા બહુ આવે છે, એટલે એને શુદ્ધ ખાણું નથી મળતું ને આપણું જૈન મંદિર દર્શનથી વર્ષિત થાય છે. એના માટે મારે ભાવના આવી કે ભાઈ આ આપણે રામેશ્વરમાં મંદિર હોવું જોઈએ. એટલે અમારે ગુરુને, અમારે જે અમે માનીએ છીએ રાજેન્દ્રસુરીના ભગવાન, અમે મોહનખેડાવાલાને વિનંતી કરી, દાદાને વિનંતી કરી, તો એને મને પરમિશન આપ્યું કે ભાઈ તમે એ કામ લો અને આગળ વધો. તો દાદા ગુરુદેવના હિસાબથી અમે આગળ વધ્યા, એ જગ્યા લીધી, બધું કામ શરૂ કર્યું.
એટલે તમારા ત્યાં અમારે એ મંદિરની જગ્યા ઉપર બધાના પગલિયા પડવા જોઈએ. વગર પગલીએ કોઈ તમે જાતા નથી. એમાં કોણ પુણ્યશાળી હશે કોઈ કહેવામાં ના આવે. એટલે એકના પગલિયા પણ એ જગ્યાને ક્યાંથી ક્યાં લઈ જશે. એટલે બધાય કોઈ ને કોઈ બધાય ચૂકતા નથી. જગ્યા જરૂર તમે દર્શન કરી જવાનું છે એ અમારી વિનંતી છે તમને. खास तो ये बात आपको भी बता दे, यहाँ पे सभी जो विराजमान है ये दादा भगवान से दीक्षा लेकर मन वचन काया से ब्रह्मचर्य अंगीकार किए हुए साहब जी, ये सभी जो बैठे हैं दादा भगवान के पास दीक्षा अंगीकार करके मन वचन और काया से ब्रह्मचर्य ये आप्त पुत्र कहलाते हैं। जय सच्चिदानंद संघ में आप्त पुत्र मन वचन काया से, और सभी पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड, मगर मन वाणी और काया से बाल ब्रह्मचारी और ब्रह्मचर्य अंगीकार और दादा भगवान से दीक्षा पाए हुए ये सभी आपको नमस्कार करते हैं। सभी आप तो पुत्रों नमस्कार करना। सभी है, कांति भाई, परेश भाई, सभी यहाँ पे।